Radhe Radhe everyone, I am Reena Jha. Welcome you all to today's session. So today's topic is phrases. Today's topic is phrases. A phrase is a part of a sentence, but they have some distinct features. So now we'll discuss in detail. So without taking more time, let's get started. I have written some sentences here. 1, 2, 3 and 4. मैंने यहाँ कुछ sentences लिखे हैं. Number 1, I live in Delhi. I live in Delhi. To find fault is easy. Walking in fresh air is very healthy. I am playing in the ground. So all these sentences make sense. यहाँ पे जितने भी sentence है वो क्या करते हैं, एक sense बनाते हैं. But some group of words which are underlined here. Some group of words you can see I have underlined here. Some group of words which are underlined, they make sense but not complete sense. इससे sense बनता है but complete sense नहीं बनता. जैसे कि in Delhi, to find fault, walking in phrase, in the garden. आप देख रहे होंगे ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उससे सेंस बन रहा है बट इससे उनके सब्जेक्ट का वर्ब का पता नहीं चल रहा है. तो वी कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस but not complete sense and do not have finite verbs. Are called phrases. Example, I live in Delhi. Group of words that make sense but not complete sense and do not have finite verbs are called phrases. ऐसे group of words जिनका जो कि सेंस क्रिएट करते बट कंप्लीट सेंस क्रिएट नहीं करते और जिनके पास फाइनाइट वर्ब्स भी नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, फ्रेजेस कहलाते हैं. एग्जांपल, आई लिव इन दिल्ली. सो यू कैन सी इन द गिवन सेंटेंस आई इज द सब्जेक्ट एंड लिव इज द वर्ब. बट इफ वी टॉक अबाउट इन दिल्ली, अगर हम बात करें इन दिल्ली की, तो दिस इंडिकेट्स that in Delhi phrase. If we talk about in Delhi, so this group of words does not have subject and does not make complete sense. in Delhi जो है वो उसके पास क्या है, सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है and does not make complete sense. in Delhi जो है वो complete sense नहीं बनाता. इसी तरह से to find fault is the phrase, walking in fresh air is the phrase and in the ground is the phrase because does not have subject, does not have verb and does not make complete sense. ये जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उनके पास सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है और इनका जो है कंप्लीट सेंस नहीं बनता, फाइनाइट वर्ब भी इनके पास नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं. तो इन दिस सेंटेंस दिस इंडिकेट्स दैट इन दिल्ली इज द फ्रेज. जो ये इन दिल्ली है वो क्या है, फ्रेज है. सो नाउ विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ फ्रेज. अब हम बात करते हैं फीचर्स की. तो फीचर्स क्या हैं? Number 1, it is a part of a sentence. Number 2,
does not make complete sense. Number 3, it does not contain a finite verb. Number 4, it may contain non finite verbs. So features of phrases. phrases के features क्या है? It is a part of a sentence. phrase क्या है? part of a sentence है. It does not make complete sense. और phrase जो है complete sense भी नहीं बनाता है. It does not contain a finite verb and it may contain non-finite verb. Sorry. Non-finite verb. So now I want to tell you what is finite verb and what is non-finite verb. Finite verbs क्या होते हैं, non-finite verbs क्या है? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो है वो finite verbs बनाते हैं और नहीं बनाते हैं, और contain और non-finite verbs बनाते हैं. तो I want to tell you कि what is non-finite and finite verbs. तो finite verbs वो होते हैं जो subject के according जिनका verb change होता है, and non-finite verbs वो होते हैं जिनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होता, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल ले, फाइनाइट वर्ब. आई इट मैंगो. ही इट्स मैंगो. आप देख रहे होंगे आई इट मैंगो, मैंने यहाँ लिखा है आई इट मैंगो और नीचे क्या है, ही इट्स मैंगो. तो यहाँ पर जो वर्ब जो है वो बदल रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. आई के साथ इट है और ही के साथ इट्स है. तो फाइनाइट वर्ब वही होते हैं जो सब्जेक्ट जिनका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलता है, टेंस बदलता है. बट नॉन फाइनाइट की अगर हम बात करें, अगर हम नॉन फाइनाइट की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं बदलता है. नॉन फाइनाइट verbs. I want to play. आप देख सकते हैं आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट. यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ जो वर्ब है टू प्ले दोनों में आपने देखा होगा कि वर्ब खेलना जो वर्ब है उसमें चेंजिंग बिल्कुल नहीं आया है. और उसके ऊपर जो मैंने बताया था आई इट मैंगो, ही इट्स मैंगो, तो वर्ब में इट था, इट में चेंजिंग आया था, इट में इट्स लग गया था. जब मैंने चेंज किया था ही के साथ तो इट्स लग गया था. बट यू कैन सी आई वॉन्ट टू प्ले, वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं है. ही वॉन्ट्स टू प्ले, वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं है. तो वी कैन से कि फाइनाइट वर्ब्स चेंज फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट टेंस, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज फॉर्म विथ सब्जेक्ट और टेंस. फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब बदलता रहता है. सब फाइनाइट वर्ब में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और नॉन फाइनाइट वर्ब में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेंस बिल्कुल नहीं बदलते, वर्ब भी नहीं बदलता. तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. बाय टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू.